हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟॉपिक ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਪਾਰਟ ਜੋ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡ ਫॉर द ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ MCQ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं। फस्ट इज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी इज़ दी टाइप ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी किहदी टाइप आ। मैं उत्थे एक फ्लो चार्ट करवाया सी, जिहदे विच मैं दस्सिया सी पेपर क्रोमैटोग्राफी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी दी ही एक टाइप। क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर असेंशियल ऑयल प्योरीफाइड। सो जिन्नी भी असेंशियल ऑयल होंगे उन्होंने आप स्टीम डिस्टिलाइजेशन जोड़े प्योरीफाई कर लेंगे। नैक्सट इज़ द प्रोसैस ऑफ सैपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। असी सॉरी सैपरेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब तो पहला स्टार्टिंग 'ਚ ਆਪਾਂ मैथड किया सी कि जे साढ़े को कोई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ उन्होंने ਆਪਾਂ किद्दां सैपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, सब्लीमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन। सो ये विच साढ़े कोल है क्रिस्टलाइजेशन। द नैक्सट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस मूव बाय सबस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस मूवड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन इज नोन एज DF वैल्यू, HF वैल्यू, RF वैल्यू या TF वैल्यू। जे तुहानू याद होवे तो मैं तुहानू जो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी सी TLC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ क्वेश्चन कि ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस बेस लाइन तो ਹੁੰਦਾ ਆ, ठीक है, सॉल्वेंट ਦਾ ਤੇ उस सबस्टांस ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ RF ਵੈਲਿਊ। मैं बड़ी तुहानू क्लैरिटी नाल ये करवाया सी, जे तुहानू याद होवे तो बहुत ईजी क्वेश्चन सी ये। नैक्सट दिस मैथड इज़ यूज टू प्यूरीफाई लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डीकंपोज ਐਟ ਔਰ ਬਿਲੋ ਦੇਅਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਰਿਡਿਊਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। स्पैशल मैं हाईलाइट किया है डीकंपोज बिफोर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, वो सी डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रैशर। ठीक है, जे तुहानू याद होवे ये वाला सी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्योर सैंपल ऑफ नैफ्थलीन। वेरी गुड। नैफ्थलीन किद्दां प्यूरीफाई किया जा सकता, डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन या सब्लीमेशन। व्हाट इज़ नैफ्थलीन? नैफ्थलीन इज़ अ, याद होवे तो सब्लीमेट। मैं अलग अलग तरह सब्लीमेट दसे सी, कैम्फर, सॉलिड, CO2 है ना, आप कीते सी। सो ये लिए किहड़ा प्रोसैस यूज़ होएगा, सिंपल सब्लीमेशन। बस जो असीं कीता उहदे विचों ही है। द प्रोसैस ऑफ सैपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट एंड प्यूरीफाई द कंपाउंड बाय यूजिंग द एडजॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन का प्रोसैस किह च यूज़ होया सी, मिक्सचर ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ डिफरेंस। ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਬਲੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਸਟ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਬਾਈ। ਯਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रैशर। ठीक है, रिड्यूस्ड प्रैशर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। याद होवे तुहानू एसीटोन ते मिथेनॉल दोनों का सेम जो बॉइलिंग पॉइंट सीगा ना, ये सैपरेट करने लिए आप किहड़ा मैथड यूज़ करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल या फिर सिंपल। किहड़ी यूज़ करते हैं आप,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किहड़ी यूज़ करते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद होवे चंगी तरह मैं एग्जाम्पल्स ये करवा चुकी हाँ। नैक्सट वैन ए सॉलिड वेपराइज डायरैक्टली विदाउट मेल्टिंग एक सॉलिड आ डायरैक्टली वेपर च कन्वर्ट हो गया मेल्ट नहीं किया डायरैक्टली तो याद करो किहड़ा प्रोसैस हुंदा सी वैपोरेशन सैडिमेंटेशन स्मोनिफिकेशन या सबलीमेशन सबलीमेशन किहड़ा आ सबलीमेशन। अच्छा तुसीं नाल अटैम्प्ट कर रहे हैं बाद दस्सिओ तुहाडे किन्ने सही होए सी मैनूं कमेंट च जरूर दस्सिओ कि किन्ना क तुहानूं समझ आया सी किन्ना क ईजीली तुसीं ये वाले क्वेश्चनस नूं जो आ जज कर पाए। ठीक है जी। नैक्सट देखो अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन कैन बी सैपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम याद होवे क्रिस्टलाइजेशन दे विच ना एक टाइम आंदा ही जो मैं तुहानूं दस्सिया सी उत्थे हॉट वाटर का यूज़ करना पैंदा सो बेंजोइक एसिड ते नैप्थलीन दे विच सानूं हॉट वाटर का यूज़ करना पैंदा सैपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट वाटर। द प्यूरीफिकेशन ऑफ बेंजामाइन किहड़े मैथड नाल कीता जा सकदा स्टीम डिस्टिलाइजेशन क्रोमैटोग्राफी टैक्नीक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या बाय एडिंग ऑक्सैलिक एसिड। बेंजामाइन लई आपां यूज़ करते हैं स्टीम डिस्टिलाइजेशन किहड़ी यूज़ करते हैं स्टीम डिस्टिलाइजेशन। नैक्सट देखो जी सबलीमेशन किहदे लई नहीं हो सकती नैप्थलीन बिल्कुल ये प्यूरीफिकेशन क्योंकि एक सबलीमेट आ कैंफर बिल्कुल एक सबलीमेट आ बेंजोइक एसिड एक सबलीमेट आ यूरिया ये नहीं हो सकती सो दिस इज़ द राइट आंसर क्योंकि एक सबलीमेट नहीं है ही पूछा से किहदे लई नहीं हो सकती जिहड़ा देखो सबलीमेशन टैक्नीक सबलीमेट्स लई यूज़ हुंदी आ यूरिया तो एक सबलीमेट है नहीं बाकी तीनों ही सीगे सो ये यूज़ नहीं हो सकती। शुगर कंटेन करती है कंप्यूरिटी ऑफ द कॉमन सॉल्ट कैन बी प्यूरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम। अच्छा जी तुहानूं याद होवे शुगर की इंप्यूरिटी लिए आप उत्थे एक जो असीं ना मैं एक एग्जाम्पल कराई सी ये तुहानूं क्रिस्टलाइजेशन वाले प्रोसैस दे विच जो आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की सी ना उहदे विच मैं दस्सिया सी कि जो शुगर ते साल्ट नूं अलग करना होवे तां इथेनॉल यूज़ करदे आ क्योंकि पानी च तां दोनों ही घुल जाने सी सॉल्युबिलिटी दे डिफरेंस ते सी ना सॉलिड दा तां सो इस करके इथेनॉल यूज़ आपां करदे सी। नैक्सट आ मिक्सचर ऑफ वैरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या हाइड्रोक्सो इत्थे पैरा लिख लियो ठीक है इन्हों असीं अलग करना ऑर्थो पैरा मैं तुहानूं कराया सी वो लई की आपां यूज़ करते सीगे किहड़ा मैथड यूज़ करते सीगे स्टीम डिस्टिलाइजेशन ये मैं स्पैशल एग्जाम्पल तुहानूं करवाई सी। नैक्सट आ सैपरेशन ऑफ टू सबसटेंस बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ अच्छा गल आ गई फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ठीक है असी सैपरेट करना दो सबसटेंस नूं इस मैथड नाल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नाल वो किहदे डिफरेंस ते डिपेंड करेगी डेंसिटीज़ ते सॉल्युबिलिटीज़ ते मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। याद होवे मैं तुहानूं मेन पॉइंट्स नोट कराए सी क्रिस्टलाइजेशन लई आपां कित्ते जांदे आ सॉल्युबिलिटी ते जिहदी जगह डिस्टिलाइजेशन हुंदा फिर आपां कित्ते जाना ही बॉइलिंग पॉइंट ते जे क्रोमैटोग्राफी आ जाए फिर एडजॉर्प्शन तीनों याद रखो क्रिस्टलाइजेशन लई सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस चैक करते हैं डिस्टिलेशन लई आपां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस चैक करते हैं तो जे साडे क्रोमैटोग्राफी वाले वो एडजॉर्प्शन ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सॉल्युबिलिटीज़। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इनवॉल्व द प्रोसैस ऑफ अच्छा जे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾइनिंग याद होवे क्रूड ऑयल ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ना सिंपल ना स्टीम ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। टेक्नीक ऑफ गैस क्रोमैटोग्राफी इज़ सूटेबल फॉर द कंपाउंड अच्छा एक गैस क्रोमैटोग्राफी शायद मैं जो कराया उदों नहीं गैस क्रोमैटोग्राफी अलग तो कराई बट याद कर लो ये लई हुंदी है जिहड़े वेपराइज करते विदाउट डीकंपोजिशन उन्हां लई यह मैथड जिहड़ा यूज़ किया जाता है ठीक है। स्टीम डिस्टिलाइजेशन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल हायर अल्काइन मिनरल ऑयल या फैटी एसिड ये सिर्फ हुंदी है एसेंशियल ऑयल लई किहनां लई एसेंशियल ऑयल लई। नैक्सट है सैपरेशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन कैन बी अचीव बाय वेरी इंपॉर्टेंट याद करो किहड़े ऑर्गैनिक कंपाउंड वो एक्वस सोल्यूशन चों आपां कढिया सी कि ना डिस्टिलेशन ना स्टीम डिस्टिलाइजेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन देखो डिस्टिलेशन तो नहीं सी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन भी नहीं सी ठीक है। ऑर्गैनिक कंपाउंड वो एक्वस सोल्यूशन दे विच वो सीगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਵਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਫ ਮਿਕਸਚਰ ਬਾਈ ਕॉलम क्रोमैटोग्राफी डिपेंड अपॉन देखो क्रोमैटोग्राफी की गल आ गई ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर
डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। सो मैं तुहानूं बार बार ये बोलदी हाँ, जे क्रिस्टलाइजेशन आ जाए सॉल्युबिलिटी का आना डिफरेंस, जे डिस्टलाइजेशन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट का, जे क्रोमैटोग्राफी आ गई फिर की आना एडजॉर्प्शन का। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट से सारे क्वेश्चन समझ आए, कुछ ज़्यादा औखा नहीं सीगा, बड़े ईजी से, ईजी वे नाल कर लेने आ। 2-3 बारी आप अटैम्प्ट करो तो मैंने कमेंट बॉक्स जरूर दस्सिओ कि तुहानूं किन्ने क्वेश्चन आते सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।